پھر وہ آسانی نال کھڑے ہوئی سکتے. مہربانی اللہ تعالیٰ سارے جزاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اب یہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے حافظ نظیر صاحب سے منتخب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں. بلا لو پھر
رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے گلاؤ اپنی امتوں کو خدا جب تم سے فرمائے گلاؤ اپنی امتوں کو تو میری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حضرات محترم و محتشم محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے آپ تمام لوگ محبت کے ساتھ مودت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حاضری لگوائیں. والی صاحب کے حکم کے مطابق میں نے فون اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اس ٹائم کے مطابق گفتگو کروں گا. اس لیے تمام حضرات محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ذرا زور سے بولیں. وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. حضرات محترم و محتشم, قرآن مقدسہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ اور آپ سب کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سرائے جلالین کے اندر اس کی تفسیر یوں لکھتے ہیں, یتساءلون عن المجرمین. جب مسلمانوں, مومنوں اور کافروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا, منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا, مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا, اور اللہ کے بندوں کو الگ کر دیا جائے گا, اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا, نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا, دین کے اوپر پابند رہنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا, اور باغیوں کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے یتساءلون عن المجرمین, اے مجرموں الگ ہو جاؤ, آج میں فیصلہ کرنے والا ہوں. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن کا بادشاہ کون ہے, فیصلہ کرنے والا کون ہے, عدل کرنے والا کون ہے, حکم کس کا آج چلتا ہے, آج کون ہے جو فیصلہ کرے گا. تو سارے کے سارے وہاں پیچھے دیکھیں گے, اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے مومن آ جائیں گے. فرمایا اللہ جی ان کو الگ کیوں کر دیا؟ فرمایا اس لیے الگ کیا ہے. سورۃ مدثر کی 29 سپارہ کے اندر جو سورۃ مدثر ہے اس سے میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوت جو ہے کی ہے. اللہ فرمائیں گے یتساءلون, اے میرے مومنو, اے میرے بندو اور روزہ رکھنے والوں, اور جنہیں 4 فرض وضو کے آتے تھے وہ لوگوں. اس جنازے کے اندر بے شمار لوگ یہاں بیٹھے ہیں,
मैं अगर ये कह दूं हाथ खड़ा करो, किस किस ने नमाज पढ़ी है, नहीं, ये बात नहीं कहता हूँ, इसलिए कि मैं पर्दा आप पे रखता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे उन मोमिनों से, उन सालिहीन से, उन मुत्तकियों से, उन परहेज़गारों से, नमाज पढ़ने वालों से कि इन्हें पूछो ना, ये जो अलग जो हो गए, इन्हें पूछो ना, मा सलककुम फी सकर, यतसालूना, सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जलाया है, आज तुम दोज़ख में क्यों जल रहे हो, तुम्हें दोज़ख में किस चीज ने भेज दिया है। यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, और तुम इसमें क्यों जल रहे हो, तुम्हें आग क्यों जला रही है। तो क्या है जमा की सिगा, कारी साहब, कालू जमा का सीगा, सारे के सारे, और सारे मुजरम, और जिन्हें 4 फर्ज वुजू ने नहीं से यशने, जिन्हें याद नहीं कीते, अगर कोई मौलवी 4 फर्ज दसना था तो एक आखने से मौलवी की तकरीर नहीं, इसलिए सिर्फ 4 फर्ज वुजू ने जिन्हें इसका पक्की रोटी रटी भी, और पक्की रोटी रटी था जेडे 4 तुसें फर्ज दसने हो तो रटी गिनो, और मौलवियां तो चलो पक्की रोटी रटी भी, इतना बड़ा कम करिए, तुसा 4 फर्ज तो रटो। वुजू के 4 फर्ज कौन से हैं, ये भी दोहराया जाता हूँ। 4 फर्ज वो ये हैं, तरतीब के साथ जब हम वुजू करते हैं तो सुनते भी अदा होती है, मुस्तहबात भी अदा होते हैं, और जब 4 फर्ज पूरे करते हैं उसमें सुनते भी अदा हो जाती है, और मुस्तहबात भी अदा हो जाते हैं, और फराइज मुकम्मल हो जाते हैं। सुन्नतों में से और मुस्तहबात में से कोई चीज़ रह जाए तो वुजू तो हो जाता है, लेकिन फराइज में से अगर कोई चीज़ रह जाए तो वुजू नहीं होता है। वो 4 फर्ज कौन से हैं? ये लोग कहते हैं मौलवी तकरीरें करके दुआ मांग मांग कर आज दिन तक ना कश्मीर को आज़ाद करा सके, ना फलस्तीन का मामला हल कर सके, और तुम वुजू के 4 फर्ज नहीं याद कर सके, हम क्या करें वहां जाकर। तो हज़रात मोहतरम, वो 4 फर्ज कौन से हैं? हाथ धोना कूनियों समेत, चेहरा धोना यानी पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोना। 2 फर्ज, इसमें मुंह में कुली करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी का खलाल करना, तमाम अज़ू को 3 बार मरतबा धोना, ये सुन्नतों में आ जाता है। ये तरतीब को जब हम मलहूज रखते हैं तो वुजू मुकम्मल होता है, सुनते अदा होती है। 3रा फर्ज, चौथाई सर का मसा करना। अनाफ के नज़दीक डिफरेंट है, जितने भी अनाफ हैं उनके अंदर ये डिफरेंट बात है, लेकिन हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं उसके नज़दीक चौथाई सर का मसा करना क्या है, यानी अपने हाथों को यूं जोड़कर चौथाई सर का मसा करना, 7 गर्दन का, कानों का। अब 4था फर्ज, पाँव धोना टखनों तक। ये हैं 4 फर्ज, ये मुकम्मल हो गए। अब वुजू के अब जो है गुस्ल के 3 फर्ज, गुस्ल के 3 फर्ज हैं, गरारे करना, हलक तक पानी लेके जाना, नाक में पानी डालना, और पूरे जिस्म को तर करना, एक बाल भी सूखा न रह जाए। तो हज़रात मोहतरम, आज तक हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमें ये नहीं पता, सुबह उठे जाकर किसी तालाब में डुबकी लगाई, गुस्ल कर लिया। गुस्ल फर्ज है, और जो फर्ज गुस्ल है उसके फराइज मुकम्मल ना हो, पूरा दिन आदमी समुद्र के अंदर डुबकियां लगाता रहे, गुस्ल फर्ज मुकम्मल नहीं होता है। तो मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जला दिया है, किस चीज ने तुम्हें जलाया है। कालू, सारे के सारे कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अजान होती थी तो हम एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से बाहर निकाल देते थे, और जब कोई उलमा, जब कोई आलम, जब कोई अल्लाह का बंदा, जब अल्लाह का सालिहीन, अल्लाह का मुत्तकी ये कहता नमाज पढ़ो, हम तो ये कहते थे ये मौलवियों का काम है नमाजें पढ़ना, अज़ानें पढ़ना, ये तो मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। और दूसरा काम क्या करते थे, लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे।
धक्का देते थे, उन्हें घर से जो है चिरके देकर निकाल देते थे। लम नकुन नुतिमुल मिस्कीन फकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और बेहुदा बकवास करने वालों के साथ बेहुदा बकवास किया करते थे। फकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और रोज़े जज़ा को झुठलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि कब्र तक हम पहुँचा। तो हज़रात मोहतरम व मोहतरम, आज मेरा ये पहला सबक आपको था। बड़ी लंबी लंबी तकरीरें मैंने की हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के खिताब किए हैं ज़िंदगी में। मैंने सोचा कि कुछ नहीं किसी के पल्ले में पड़ा, ये लंबे लंबे खिताब करने से कुछ नहीं पड़ा। क्यों ना आपको कोई फ़राइज़ के हवाले से बता दूं, शायद किसी को कोई 4 फर्ज याद हो जाए, 3 फर्ज याद हो जाए, कोई बात मेरी उनके दिल में पड़ जाए, मेरी बात को पल्लू में आप बांध लें, आपका काम भी हो जाए, मेरा काम भी हो जाए। अल्लाह मुझे भी इसके ऊपर और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने और आपने इस पर अमल करना, जैसे अल्लामा सगीर साहब जिक्र कर रहे थे कि आने वाले लम्हे का पता नहीं है, लेकिन प्लानिंग हमने 40 साल आगे की हुई है, माली हवाले से या बैंक बैलेंस के हवाले से। आज गौर व फिक्र और अपना मुहासबा हमने इस लिहाज से करना है कि आखिर क्या वजह है, बारिश क्यों नहीं हो रही। बारिश बनी होती है, लग ऐसे रहा होता है कि चंद सेकंडों के बाद छम छम के बारिश बरसने वाली है, लेकिन फिर नहीं बारिश बरसती। वजह क्या है? ताइदार खत्म नबूवत, गुंबद खलरा के मकी, इमामुल अंबिया, ताइदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब लोग ज़कात देना बंद कर देते हैं, अल्लाह पाक आसमान से बारिश को रोक लेता है। आइए अपना मुहासबा करें, कहां दौलत पर सांप बन के बैठ गए हैं। इस दौलत के मुंह गरीबों के लिए क्यों नहीं खोल रहे? दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस दौलत को खर्च क्यों नहीं कर रहे? ये बारिश क्यों नहीं बरस रही? कहा गया कि जब फहाशी आम हो जाती है, अल्लाह पाक बारिश को रोक लेता है। फहाशी के हवाले से कहने की जरूरत नहीं, दाएं बाएं देख ले। और हमारे तालीमी इदारे जो है, चंद दिन पहले हमारे इस कॉलेज के अंदर, कोयटा के अंदर देखा, वहां पर डांस जारी है। कौन से साजा है? ये कैसी तालीम दी जा रही है? हमारे आने वाले नौनिहालों को ये क्या सिखाया जा रहा है? रात लाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर उसका इफ्तिताह किया गया। हमने आर्मी सतह पर क्या पैगाम दिया? नाच गाने वालों को डांस करवाया गया वहां पर, लेकिन कुरान की तिलावत या इस्लामी नुक्ताए नजर के हवाले से हमने आर्मी सतह पर क्या पैगाम दिया कि हम इस्लामी मुल्क वाले। अब आवेदी बकार अपना मुहासबा करना पड़ेगा। आज नमाज इसका भी पढ़ी जा रही है। मौलवी साहिबान मसाजिद में नमाज के बाद पीछे से आवाज दी, मौलवी जी बारिश से दुआ करें, फिर कोई नहीं बारिश। अपना मुहासबा करना पड़ेगा। जो ज़कात नहीं दे रहे उन्हें ज़कात अदा करनी पड़ेगी, और जो फहाशी आम होती जा रही है इसको लगाम डालनी पड़ेगी। दीने मुस्तफा को प्लेटफॉर्म बनाकर उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारना होगा। आज ये बुजुर्ग साहिबान हमारे सामने मौजूद है, इन्होंने किस अंदाज के साथ हमारी तरबियत की। आज जब हमारी बारी आई तो हमने डंडे लगाने शुरू कर दिए। आज इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती होगी, जानवरों से भी सस्ती हो गई है। जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर भाई भाई का गला दौड़ रहा है। ये कौन सी जमीन है जिसके लिए यहां पर जिंदगियां गुजर जाती है, एक दूसरे को बुलाया नहीं जाता। जब मर के चारपाई पे आ जाता है, फिर सारे को स्टेटस लाना, कोई क्या करना, बड़ा चंगा सा जी फलानी जगह मिला तो बड़ा सीता मिला। वो जीनिया की मौत पे नहीं तारीफ करने। जो साहिबान किरदार अदा कर रहे बाबा के दौड़ गए जी, फलाना आदमी जो मर्जी बरादरी है, जी बड़ा चंगा है, बड़ा माशरे किरदार अदा करना। माशरे की जिम्मेदारी है जो मुस्बत किरदार अदा पिया करना, चाहे मिंबर में वारिसा, चाहे मोहल्ले भी कोई आम बंदा आया, जरा मुस्बत किरदार अदा पिया करना, उसने दस्ते बाजू बनी।
जड़ा दीन इस्लामी सरबुलंदी ने गल क्या करना, उसने सर पर दस्त शफकत रखो। जिंदगी 4 दिन नहीं है, कोई पता नहीं सुबह खत्म हो जाए, कोई शाम खत्म हो जाए। बुजुर्ग कुर्सियां पर तशरीफ फरमाए। इन्हें को जब पूछा ना किस जिंदगी गुजरी, असल कल्ला नहीं गल तू नसने उधर जाने होने से, लेकिन गुजरी गई। तो आशा के भी इतना ज्यादा मोहनत कोई नहीं है। ये लम्हे मौजूद है, इन लम्हे विच असें कब्र नहीं तैयारी माशरे भी एक जिंदा किरदार पेश करी था। जाओ जिंदा इस तरह रो कि हर कोई सलाम करे, तो मरो इस तरह कि हर बंदा याद कराएगा कितना बड़ा चंगा बंदा। इतना तो जब हमारी गई इला माशाअल्लाह ये हमारी है, इसे मैंने लंदन देना है। वो क्या होगा कि तारी इंसान को क्या लंदन देना, वो कर एक फिस्ता चक्कर लाती ना पूरे करे रोना पीछा छोड़ी जैसी दुआ के अल्लाह पाक माई सहमानिया ने मनाजिल आसान फरमाए। असा सारे की मौत याद रखी है, इंसानियत ने तल पर से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदना मुय्यिदना व शाहिदना व गाइबना व सहीदना व कबीरना व ज़करना व अंसाना। अल्लाहुम्मा मन अशरैतु मिन्ना फ़अशरिल इस्लाम व तफ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़ा अलल ईमान। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़ियतन व मुशफ़ा। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़ियतन व मुशफ़ात। इलाही नमाज जनाजा अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाना। जितने मेरे भाई नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं, जिस नीयत से, जिस फ़िक्र से, जिस सोच से, जिस मकसद के लिए आए हैं, इलाही माई साहबा के साले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमाना। इनके दर्जात बुलंद फरमाना, इनके सहायर कबायर गुनाह माफ़ फरमाना, इनकी आने वाली तमाम मनाज़िलें आसान फरमाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमाना, कब्र की तमाम मनाज़िलें आसान फरमाना, कब्र तहत निगाह कशादा फरमाना। इलाही पुरसात से चलना इनके लिए आसान फरमाना, महशर की गर्मी से इन्हें महफूज फरमाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाना। आशा सदीका खतीजा कुबरा फातिमा ज़हरा का साथ नसीब फरमाना, दामन नसीब फरमाना। हम सब की दुआ इनके हक में कबूल फरमाना, और दुनिया के ऊपर रहते हुए जितने इनके नेक अमल थे अल्लाह उनकी वो तमाम दुआएं इनकी औलाद के हक में कबूल फरमाना, इनके पूरे ख़ानदान के हक में कबूल फरमाना। इनकी बेटियों, इनके बेटों, इनके तमाम ख़ानदान के जहाँ से आई हैं, जहाँ गई हैं, इलाही तमाम जो इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ इनकी बेटियाँ गई हैं और जहाँ से इनकी बहू आई हैं, अल्लाह उन तमाम ख़ानदानों के हाल पर रहम करम फरमाना, और उनके जितने लवाहिकीन दुनिया से रुखसत हो गए हैं सब की मग़फ़िरत फरमाना। 14 पीढ़ियाँ दादक, 14 पीढ़ियाँ नानक में से जितने लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं अल्लाह सब की कब्र की मनाज़िलें आसान फरमाना। और जिस कब्रिस्तान में ये जा रही हैं, यहाँ पे जितने लोग मदफन में, जितनी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ इस्लाम के नाम पर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सब की कब्रें तहत निगाह कशादा फरमाना, सब की मनाज़िलें आसान फरमाना। अल्लाह हम सब की दुआ उनके हक़ में कबूल फरमाना, और जितने मेरे भाई ये ज़िंदा हैं अल्लाह सब के इनके हाल पर रहमत फरमाना, और हम सब पर रहमत फरमाना। अल्लाह हमारे अमालों की तरफ न देखना, लोग की जो सुन्नत है उसके मुताबिक इन जानवरों के सदके, इलाही परिंदों के सदके अल्लाह हम पर रहमत वाली बात रहम करम फरमा, फज़ल फरमा, मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा फरमा, इलाही इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र का मुँह काला फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि हल्की नूरे शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि पंछी वांगू उड़ जाना एक दिन मार उडारी, कदर उन्हां दी पैनी ओथे अमल जिन्हां दे पारी, आए अमल जिन्हां दे पारी। हर शय छड्डनी पैनी बंदे जान तू जेड़ी प्यारी, जान तू जेड़ी प्यारी। अज टुरिया कोई कल टुर जासी, सादक वारो वारी हो
ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਪੜ ਲੋ